people, I believe you are doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. In one of his recent articles, Joseph S. Nye, who is an international political scientist, writes that the contemporary century is more about twisting minds than arms. It's about exporting ideas, ideals, and models in a bid to our rivals. Not surprisingly, the prevailing situation in the global political spectrum corroborates the fact that states never shy away from practicing beggar-thy-rival policies for their entrenched and personal interests. Granted, the clash of developmental and infrastructural models provide legitimacy to the preceding proposition that, regardless of their interdependence, indeed complex interdependence, two of the great economies have clocked themselves at opposing poles to counter each other at all realms and by every means. Indeed, the competition between BRIE and Build Back Better World is an episode of hard-edged realpolitik between the rising and existing power. Also, from what visible on the ground, it appears as though the two major economies vie for expanding their influence, exporting their ideals, and exploiting what is in so far untapped. Additionally, their insofar practices add more water to the notion of neo-colonialism in the making. Against this backdrop, our area of discussion for this sitting revolves around China's BRIE and US-led Build Back Better World. In this session, we will answer such questions as what exactly is B3W? Is BRIE the East India Company in reverse? Are these two developmental models complementary to each other or counterweight? Further, we will discuss as to which of these two infrastructure models is more viable. At the end of our discussion, we will provide Pakistan's perspective as to which of these two models better serve Pakistan's cause. Peter Frankopan writes in his book, The Silk Roads, A New History of the World, that for centuries, fame and fortune were to be found in the West, in the new world of Americas. But today, it's the East which calls out to those in search of riches and adventure. The region sweeping across the Central Asia and deep into India and China is a region that once took center stage is yet again on the rise to dominate global trade, commerce and culture. पीटर की इस बुक की इंटरप्रिटेशन से या इस बुक की इस स्टेटमेंट से हमें यह समझ आती है कि जो करंट सेंचुरी है या जिसको हम कहते हैं करंट जो माइलो है वो इज ऑल अबाउट कॉरिडोर्स, इज ऑल अबाउट सिल्क रोड्स एंड इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन बिटवीन मेजर पावर्स. इस डिस्कशन और इस नोशन को इन व्यू रख के आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो उसको हम कंडक्ट करेंगे और उसको हम आगे लेके चलेंगे. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल आप लोगों के सामने नजर आ रहा है कि ब्री है. इसमें बात करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेड बाय चाइना, और दूसरी तरफ वेस्टर्न लैंडस्केप की बात करें या अमेरिका की बात करें तो वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है जिसकी बात हम आज करेंगे. अपनी आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि ये जो दो डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनके क्या हॉलमार्क्स हैं. जिन दो मेजर कंट्रीज और इकोनॉमीज ने इन दो मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है उनके क्या goals हैं behind promulgating such developmental models or introducing such infrastructural models to the world. हम फिर ये देखेंगे कि उनके वो कौन से इंटरेस्ट हैं जो कि अनडिफाइंड हैं या वो इन दो प्रोजेक्ट्स के थ्रू अटेन और एक्रू करना चाहते हैं. फिर हम देखेंगे कि इन दो प्रोजेक्ट्स के बीच में क्या कन्वर्जेंसेस हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं. फाइनली हम अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे एज टू विच ऑफ दीज टू प्रोजेक्ट्स is more viable and feasible to cater to the needs of 21st century's infrastructure. तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों के लिए यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट कुछ दो सोर्सेस से मेंशन किए हैं. एक ब्री के लिए है और एक B3W के लिए है जो कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है. यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने जो पहले कोटेशन समझ लिया इसको लिखा है वो है ब्री इज चाइना's मार्शल प्लान aimed at winning new spheres of influence, denuding the liberal order of legitimacy and constructing a new operating system in the image of Confucianism.
ये हम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे हमने मेंशन किया है। द गार्डियन न्यूज़पेपर है जो कि अमेरिकन एक डेली न्यूज़पेपर है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो ब्री है वो चाइना का 21st सेंचुरी का मार्शल प्लान है। यहाँ पे फॉर उन लोगों के लिए जो कि न्यू कमर्स हैं या जो नए हैं इस प्रिपरेशन में, उनके लिए बताते चलें कि मार्शल प्लान एक ऐसा प्रोजेक्ट था या एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसके थ्रू अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी या वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ थी जो कि शटर्ड कर गई थी ड्यू इन पार्ट टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनकी री इन्विगरेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए एक प्रोजेक्ट और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं मार्शल प्लान। इस प्लान के अंडर यूएस ने वो जो इकोनॉमीज थे वॉर टॉर्न इकोनॉमीज उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, इकोनॉमिक असिस्टेंस सो एज टू रिवाइव बैक देयर इकोनॉमीज। उस प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव का नाम है मार्शल प्लान। तो आजकल जो है ना वो काफ़ी सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स चाइना के ब्री के बारे में ये नोशन रखते हैं या ये ऐसे मतलब आइडियाज़ बताते हैं या ऐसे उनकी इंटरप्रिटेशन इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं जैसे चाइना जो ब्री है वो 21st सेंचुरीज मार्शल प्लान है, या जैसे जो हमारे पास नोटेबल स्कॉलर्स हैं फॉर एग्जांपल रॉबर्ट डी कैप्लन, वो कहते हैं कि जो ब्री है वो चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिवर्स। ठीक, आगे अगर हम बात कर लें B3W के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन है या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं एशियन कंट्रीज़ का या जो प्रो ब्री कंट्रीज़ हैं उनका B3W के बारे में क्या राय रखते हैं, तो किशोर महबूबानी जो है ना वो एक डिप्लोमेट है सिंगापुर के, राइटर भी हैं, हैज़ चाइना वॉन इनकी बुक है जिसमें वो लिखते हैं कि B3W, ये बुक में नहीं लिखते बल्कि एक आर्टिकल में लिखते हैं किशोर महबूबानी की, B3W इज़ अमेरिकाज रिएक्शन टू चाइनाज ग्लोबल इनिशिएटिव। यानी इन दो स्टेटमेंट्स से हमें समझ आ रहा है कि जो हमारे पास दो अपोजिंग पोल्स हैं जैसे वेस्ट है एंड ईस्ट है, मसलन अगर सिंपली पुट करें तो जैसे यूएस है एंड चाइना है, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट स्कॉलर्स हैं या जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करते हैं इन दो प्रोजेक्ट्स के बारे में। मसलन वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें तो वो ब्री को ऐसे शो करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं जैसे ये चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है जिसके थ्रू चाइना जो हमारे पास पेरिफेरल रीजन्स हैं या हमारे पास जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं उनको कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ चाइना की ये भी कोशिश है कि हमारे पास जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें जो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है या स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है चाइना उसको ब्री के थ्रू थ्रेट कर रहा है। सही, इसी तरह अगर एशियन पर्सपेक्टिव की बात करें या उन कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन की बात करें जो कि प्रो ब्री हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है लेट बाय यूएस, ठीक, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि प्रोएक्टिव नहीं है बल्कि रिएक्टिव इन नेचर है, एम्ड एट काउंटरिंग चाइनास ब्री। ठीक, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर हम आगे देख लें तो अब चूँकि ब्री आप लोगों को पता है कि 2013 ऑनवर्ड्स जो है ना ये प्रोजेक्ट मतलब चल रहा है। शुरू में इसका नाम ओबोर था, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, लेकिन 2016 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम ब्री रखा गया यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसके बारे में आप लोगों को एक्सटेंसिवली पता है कि क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो एरिया है ये एक हॉट एरिया रहा है कंपैरेटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे एक कोटेशन और एक स्टेटमेंट हमने कोट किया है अल जज़ीरा से। अल जज़ीरा के अकॉर्डिंग जो ब्री है इट्स द मोस्ट एक्सटेंसिव ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अल जज़ीरा के अकॉर्डिंग दुनिया की मतलब इंसान की तारीख में ये वाहिद जो है ना वो या वन ऑफ द एक्सटेंसिव वन एंड वन ऑफ द ऑल इनकम्पैसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये अल जज़ीरा का कहना है अबाउट ब्री। आगे अगर चलें तो ब्री जो है ना इसके कुछ हॉल मार्क्स की अगर बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पर बेस करता है ये पूरा इनिशिएटिव। फर्दर इसमें जो है चाइना जो ऐसे इसको लेट कर रहा है, स्पेयर हेड कर रहा है। तो चाइना के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ना वो जो मेंबर स्टेट्स और सोसाइटीज होंगी उनके बीच में अनइम्पीरियड एंड अनइंटरप्टेड ट्रेड को हमने फंक्शनल करना है एज पर ब्रीस मैनिफेस्टो। फर्दर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करना है बिटवीन मेंबर कंट्रीज जो कि ब्री का पार्ट एंड पार्सल होंगी। आगे अगर चलें यानी इस केस में हम पढ़ रहे हैं ब्री का रेजन डेटर क्या है। ठीक है, ऑफिशियल जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं या ऑफिशियल जो वाइट पेपर्स हैं चाइनीज़ उनके अकॉर्डिंग ब्री के ये कुछ मतलब उसके रेशनल हैं या कुछ जो पर्पसेस हैं इस प्रोजेक्ट के वो ये हैं कि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करना है बिटवीन मेंबर कंट्रीज, उसके बाद कलेक्टिव एंड शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है। जैसे शी जिनपिंग जो है ना वो बार टाइम एंड अगेन कहते रहे कि
ब्री के थ्रू चाइना की ये कोशिश है या चाइना ये चाहता है कि जो मेंबर या पार्टनरिंग नेशंस हैं उनमें शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को मटीरियलाइज कराया जाए। ठीक, फर्दर कुछ आगे जो है ना हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि ब्री इज बेस्ड ऑन 5 इंटरकनेक्टिविटीज और कोऑपरेशंस, जिसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन है, कंपनीज टू कंपनीज, सोसाइटी टू सोसाइटीज। यहाँ पे स्पीड इस वजह से है क्योंकि आप लोगों को ब्री के बारे में क्लियरली आइडिया है, क्योंकि ब्री एक काफ़ी टाइम से, मतलब समझ लें कि हम ऐसे इसको कंसिडर करेंगे जैसे एक काफ़ी पुराना हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एरिया है, जिसको हम मतलब अभी सिर्फ क्योंकि आगे कंपैरेटिवली हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है बिटवीन ब्री एंड B3W, इस वजह से ये जो पॉइंट्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है उनको एक बार मैं रिफ्रेश करने के पर्पज से इनको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और मैं इनको रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक, पॉइंट 2 की तरफ अगर देख लें तो जो हो गए हमारे पास स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स टचिंग डाइवर्स सेक्टर्स। अब ब्री में हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग है वो स्टेट फंडिंग, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग चाइनीज स्टेट करती है। ठीक, जैसे अगर B3W की बात करें तो वहाँ पे जो फंडिंग है प्रोजेक्ट्स की वो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटिटीज फंड करेंगी उन प्रोजेक्ट्स को, जबकि चाइना के केस में या ब्री के केस में जो जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडर ब्री हैं उनकी फंडिंग डायरेक्टली स्टेट से डायरेक्ट होती है। ठीक, इसमें हमने लिखा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इन्वॉल्व है रेलवे ट्रैक्स हैं, रोड्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर हैं, मैरीन कनेक्टिविटी है, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, डिजिटल सिल्क रोड है, हेल्थ सिल्क रोड है, ग्रीन सिल्क रोड। ये हमारे पास कुछ एरियाज है जो कि ब्री में इंक्लूडेड हैं। पॉइंट 3 की तरफ चले जाते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पार्टनरिंग नेशंस हैं, पीसफुल राइस है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के थ्रू जो इश्यूज हैं, जो नेबरिंग जो कंट्रीज के बीच में जो इश्यूज हैं उनको इकोनॉमिकली या ऐसे हम कह लें कि पीसफुल या पैसिफिक मीन्स के थ्रू इश्यूज को रिजोल्व करने का भी एक हमारे पास जरिया है ब्री। पॉइंट 4 की तरफ चले जाते हैं। ब्री इज मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर वैक्यूम एंड क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी एंड सोशल पर्पस क्रिएटेड बाय अमेरिकास इंसुलर पोस्चर। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंटरनेशनलिस्ट हैं या एक हमारे पास थ्योरिस्ट हैं जो कि लिखते हैं फॉरेन अफेयर्स में, और उनका नाम है जॉन जे आइकनबरी। उनका कहना यह है कि जो लिबरल ऑर्डर है वो कोलैप्स इस वजह से नहीं कर रहा या उसका कोलैप्स इस वजह से नहीं हुआ कि चाइना और अदर अथॉरिटेरियन स्टेट्स का राइज हुआ, बल्कि ये जो ऑर्डर है जिसको हम आज कहते हैं लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर या रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, उसका क्लेश सिर्फ इस वजह से हुआ कि इस ऑर्डर को जो ऑथर करने वाली कंट्री थी उसने एक इंसुलर और एक इनवर्ड बिहेवियर और पोस्चर अडॉप्ट किया। ठीक, यानी अमेरिका की बात है कि अमेरिका ने जो उसकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या उसका जो एक रोल था ग्लोबल पॉलिसिंग का, उसको अमेरिका ने उससे विड्रॉ किया। अब जब अमेरिका ने इस रोल से विड्रॉ किया तो उसके विड्रॉल की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। ठीक, अब जाहिर बात है पावर वैक्यूम क्रिएट जब होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई कंट्री स्टेप इन करेगी टू फिल आउट दैट पावर वैक्यूम। अब चाइना ने जो है ना वो उस पावर वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है, और वो भी एक ऐसे टाइम में जब दुनिया 2013 ऑनवर्ड अगर देख लें तो दुनिया हम इकोनॉमिक रिसेशन के ग्रिप में थी। वो मल्टीपल इश्यूज थे जहाँ पे किसी ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत थी जो कि स्पेयर हेड करती, जो कि एक लीडिंग रोल प्ले करती, ताकि दुनिया को एक पर्टिकुलर डायमेंशन और डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। ठीक, ताकि जो इश्यूज हैं वो रिजोल्व हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन पॉइंट 4 में किया है कि मैनिफेस्टेशन यानी ब्री इज मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर वैक्यूम एंड क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी एंड सोशल पर्पस क्रिएटेड बाय अमेरिकास इंसुलर पोस्चर। अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैकेंसे एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, आई गेस सो, यस, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में जो हमारे पास दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के से रिलेटेड जो गैप है वो तकरीबन कोई $40 ट्रिलियन का गैप है। ठीक है, तो अब चाइना ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मार्केट्स है उन तक अप्रोच करना है, उन मार्केट्स को अगर टैप करना है और वहाँ जो रिसोर्स है उनको मोबिलाइज और चैनलाइज करना है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की जो कनेक्टिविटी है, वहाँ तक की कनेक्टिविटी उसको इम्प्रूव किया जाए और उसको ऐसे मतलब बिल्डअप किया जाए कि जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में उनको फुली मतलब मोबिलाइज और उनको यूटिलाइज किया जाए फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। तो अब चाइना ने इसी बात को रियलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ ब्री। ठीक, इसमें फर्दर हमने पॉइंट 4 के अंदर जो हमारे पास सब पॉइंट्स वो हैं वो ये हैं लिबरल इंटरवेंशनिज्म। हमें ये बात पता है कि यूएस ने जो है ना वो जो उसका वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि बना
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें लिबरल जो है ना वो इंटरनेशनलिज्म का एक कंसेप्ट था जिसकी बेस पे बॉर्डर बना था। लेकिन यूएस ने उस नोशन को एक्सप्लॉइट किया, बल्कि उस नोशन को अब्यूज़ किया और उसको कन्वर्ट किया इनटू लिबरल इंटरवेंशनिज्म। जैसे पॉइंट 2 में हमने लिखा है कि इसी लिबरल इंटरवेंशनिज्म के थ्रू अमेरिका ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का एक कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ में, उसको एक्सरसाइज किया। इसका मतलब ये है कि यूएस ने इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच किया। ठीक है, फर्दर अगर आगे चलें, रिजीम चेंजेस यूएस ने किए, डेमोक्रेसी फ्रॉम अबव जैसे इराक में ट्राई किया, फेल हुआ, अफगानिस्तान में ट्राई किया, फेल हुआ, एंड सो ऑन। पॉइंट सी की तरफ चले जाएं, मिलिट्राइजेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो आईओस हैं, जैसे यूएन है, यूएनएससी है, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन, उनको यूएस ने अपने इंटरेस्ट एंड अपने पर्सनल उसके लिए लव्स एंड फिशेस के लिए इनको मिलिटराइज और पोलिटिसाइज किया। अब ये कुछ ऐसे एरियाज है जिनकी वजह से हमारे पास एक नीड जो है ना वो जनरेट हुई फॉर अनदर और फॉर अ न्यू लीडरशिप एंड फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। पॉइंट्स डी की तरफ चले जाएं, सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जैसे इराक केस में जो 2003 में जो इराक में इन्वेजन यूएस ने इन्वेड किया ऑन द क्रिटिक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव वॉरफेयर स्ट्रेटजी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे बार बार इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो यूएस ने इंटरनेशनल लॉ को, हालांकि खुद इसकी मतलब प्रमोशन के लिए शुरू में काम इसने किया था, लेकिन बाद में यूएस ने इंटरनेशनल लॉ को सिलेक्टिव एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेबिलिटी पे काम किया या उसको सिलेक्टिवली उसको फॉलो किया। जहां पे यूएस का इंटरेस्ट मतलब फुलफिल हो रहा था इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करके वहां पे किया, जहां पे नहीं हो रहा था वहां पे ब्रीच किया। आगे पॉइंट ई की तरफ ले जाते हैं, यूएस अब्यूजिंग द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बाय सैंक्शनिंग अदर्स टू ब्रीच देयर सॉवरेन राइट्स। अब स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम सिंपली पुट एक ऐसा सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड में जिसके थ्रू, या इसको ऐसे आप लोग समझ लीजिए, एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू जो भी कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस चैनल के थ्रू डॉलर्स को ट्रांसमिट कराती है वो कंट्री करती है, उस चैनल का नाम है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। और ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम ऐसे आप लोग समझ लें कि ये यूएस बेस्ड है। ठीक है, इस पेमेंट सिस्टम के अंडर जो भी मतलब करेंसी ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी करेंसी जहां मर्जी से आए उसने फ्लो करना है यूएस लॉ से, डोमेस्टिक लॉ से फ्लो करके उसने डेस्टिनी तक पहुंचना है। तो अब इसी सिस्टम को यूएस जो है ना वो एक्सप्लॉइट करता है, और इसी वजह से चूंकि इस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल यूएस का है, तो यूएस जिस मर्जी कंट्री पे सैंक्शन लगाए वो सैंक्शन इफेक्टिव होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे या किसी और सिटिंग में हम डिस्कशन कंप्रिहेंसिवली करेंगे कि स्विफ्ट सिस्टम को कैसे चाइना एंड रशिया कैसे इसको मतलब चैलेंज कर रहे हैं। उसको हम कहते हैं सिप्स, जो चाइना का सिस्टम है उसको सिप्स, हम किसी और डिस्कशन में इनको कंप्रिहेंसिवली डील करेंगे। आगे चले जाते हैं, पॉइंट एफ, America's isolationist, insular and inward looking posture of the US compelled China to come to the fore to hold वर्ल्ड लीडरशिप। यानी हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे चाइना ने ये नीड फील किया कि हाँ देयर इज अ नीड फॉर लीडरशिप, ताकि दुनिया को जो क्राइसिस सिचुएशन थी 2013 ऑनवर्ड्स उसको नेविगेट किया जाए। आगे हमने कुछ यहाँ पे मतलब पॉइंट्स लिखे हैं कि इस लॉ ऑफ नेचर दैट पावर वैक्यूम वंस क्रिएटेड हैज टू बी फिल्ड। China's investment came at a time when the world was in grip of economic recession, deglobalization and new mercantilism. आगे द इनिशिएटिव इज नेसेसिटी ड्रिवन, जैसे अब ब्री की हम बात करें, जैसे हमने पहले बात की 2007-8 का जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस था ग्लोबल, उसके बाद जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थे, ऑलमोस्ट दुनिया की हर इकोनॉमी जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटीग्रेटेड है, तो हर इकोनॉमी अंडर रिसेशन थी। उस रिसेशन की वजह से दुनिया में एक मतलब इनइक्वालिटी की एक नई लेयर वहाँ पे राइज करती है। ठीक है, वेस्टर्न इकोनॉमीज इंटायरली कोलैप्स करती हैं ऑलमोस्ट। ठीक, इस कोलैप्स की वजह से वेस्ट में एंड एल्सवेयर वहाँ पे जो पॉपुलिज्म का एक कंसेप्ट है, राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स राइज करते हैं, उनकी वजह से, उनके राइज की वजह से नेशनलिज्म जो है ना वो उसका राइज होता है, नेशनलिज्म की राइज की वजह से डीग्लोबलाइजेशन सो फोर्थ। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे जिन्होंने चाइना को कंपेल किया कि चाइना एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके सामने आए जिसके थ्रू दुनिया को एक डिसाइसिव एंड डेफिनेटिव डायरेक्शन में उसको चलाया जा सके। आगे अगर चलें, अब अगर B3W या बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात अगर हम कर लें, क्योंकि ब्री के बारे में आप लोगों को मैंने इस वजह से स्पीड अप किया ब्री, क्योंकि वो आप लोगों को पता है। हमारे पास जो B3W है इसकी अगर बात कर लें, अच्छा आप लोग ऐसे समझ लें कि B3W एक रिएक्शन है टू चाइनास ब्री।
क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशन में ये पता है कि जो मेजर पावर्स हैं वो एक दूसरे के सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं सो एज टू curtail the hourly influence of each other। तो यहाँ पे B3W के थ्रू यूएस ने, या हमारे पास जो ग्रुप ऑफ 7 डेमोक्रेसीज है या G7 है, मतलब जो लार्जेस्ट 7 इकोनॉमीज है डेमोक्रेसी से, उन्होंने एक ऐसा मतलब एक ऐसी उनकी इकोनॉमिक एक्सपीडिशन है जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ब्री को काउंटर एंड कंटेन करना है। अगर यहाँ पे फर्दर जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनको पढ़े तो ये लिखा हुआ है एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च बाय G7 कंट्रीज, ठीक। आगे यूएस एक वाइट पेपर है यूएस का, उसका नाम आई गेस द वॉशिंगटन वाइट शीट है या ऐसा कोई है। बहरहाल इस B3W से रिलेटेड एक वाइट पेपर यूएस ने पब्लिश किया था रिसेंटली। उसमें लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट या दिस इनिशिएटिव इज वैल्यूज ड्रिवन। अब वैल्यूज ड्रिवन का मतलब है कि इसमें गुड गवर्नेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, एंटी करप्शन जो है ना मेजर्स लिए जाएंगे, हाई लेवल सेफगार्ड्स यहाँ पे मेंटेन या इंश्योर कराए जाएंगे, कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, हाई स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनरशिप लेड बाय मेजर डेमोक्रेसीज। अब ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, इसको पढ़ के ये समझ आ जाता है कि यस, ये जो प्रोजेक्ट है B3W ये डायरेक्टली एम करता है चाइना का ब्री को काउंटर करना, क्योंकि यूएस एंड बाकी सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो ग्रीवांसेस हैं रिलेटेड टू ब्री, वो कहते उनका कहना है कि चाइना में जो चाइनीज जो प्रोजेक्ट है उसमें गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे लेक करती है, करप्शन वहाँ पे रैम्पेंट है, ठीक है। उसके बाद लेबर जो है ना वो इनफोर्स लेबर का एक कंसेप्ट वो बताते हैं कि चाइनीज ब्री के अंदर जो लेबर फोर्स है उनको मतलब इनफोर्स लेबर यानी उनको पिनिटिवली उनको ट्रीट किया जाता है, या लेबर जो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन वो ठीक नहीं है एंड सो ऑन। तो अब इन पॉइंट से हमें ये समझ आ रहा है कि ब्री जो है ना वो रिएक्शन है टू B3W इज रिएक्शन टू चाइनाज ब्री, ये हमें इस पॉइंट से समझ आता है। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर देख लें, B3W aims to mobilize private sector capital in 4 areas। अब जैसे चाइना का जो ब्री है वहाँ पे सर्टन एरियाज हैं, जैसे अब रिसेंटली कोविड-19 के बाद चाइना ने जो है ना वो हेल्थ सिल्क रोड भी उसने चाइना ने अनाउंस किया है, इसलिए डिजिटल सिल्क रोड है, एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद रोड्स हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह इन सो ऑन। तो चाइना का जो प्रोजेक्ट है ब्री वो एम करता है ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन मोस्टली आप लोग समझ लें कि उसका जो पिन पॉइंट या सेंटर ऑफ फोकस है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जबकि हम B3W की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज किया गया है B3W में। जैसे यहाँ पे हमने 4 एरिया दिखा है, उसमें है क्लाइमेट चेंज को टैकल करेगा ये प्रोजेक्ट, या इस इनिशिएटिव में जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे, ठीक। फर्दर आगे चले तो इसमें हेल्थ की बात होगी, या हेल्थ को एक मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 ने ये दुनिया को रियलाइज कराया कि बेशक मेजर कंट्रीज जो मेजर पावर्स हैं उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स तो बना लिए, लेकिन एक इनविजिबल जो है ना वो एक स्पीशी के सामने उन्होंने कोट आउट किया, या उन्होंने मतलब उनको शिकस्त हुई एक मतलब इनविजिबल एक स्पीशी से, ठीक। आगे चले जाते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे उसमें B3W में है, और इसमें यह फोकस किया गया है कि जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी को इंश्योर कराया जा सके। तो ये हमारे पास 4 एरियाज है जिनके ऊपर काम करेगा ये, अगर प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च ऑफिशियली हो जाता है तो इन 4 एरियाज पर काम करेगा। आगे अगर चले जाएं, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है जो 4th पॉइंट आई गेस बनता है ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से। ये चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है कि ब्लू डॉट नेटवर्क जो है ना वो प्रीवियस जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इनिशिएट या उन्होंने लॉन्च किया था इसको एज अ काउंटरवेट टू चाइनाज ब्री। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ब्लू डॉट नेटवर्क ये फेल हुआ अपने पर्पस और रेजिडेंट डेटा को अक्रू करने में। इस यानी कंसेप्ट जो है BWN इसको कह लें या ब्लू डॉट नेटवर्क, इसके अकॉर्डिंग यूएस प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी वो चाह रहे थे कि दुनिया में या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स्पेशली ब्री, इन प्रोजेक्ट्स को सर्टन एक प्रोसेस से एक टेस्ट से गुजारा जाए, ये डिसाइड किया जाए कि वेदर वो इनिशिएटिव या जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो वायबल हैं, फिजिबल हैं या नहीं, क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं या नहीं। उस पूरे मैकेनिज्म का नाम ब्लू डॉट नेटवर्क। अगर मसलन यूएस ने सिंपली पुट ये कहा था कि यूएस के जो ऑफिशियल्स जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उनको स्क्रूटिनाइज करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि वेदर दोज प्रोजेक्ट्स आर वायबल फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड क्लाइमेट, अगर वो क्लाइमेट के हिसाब से अगर वो फ्रेंडली हैं तो वो ग्रीन सिग्नल देंगे तो वही प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। अगर नहीं देते तो वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो फिजिबल नहीं होंगे, उनको सपोर्ट नहीं कोई करेगा, ठीक। उस
नोशन और उस कंसेप्ट का नाम प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी यूएस की उसने दे दिया ब्लू डॉट नेटवर्क। फर्दर यहाँ पे हमने लिखा है कि ब्लू डॉट नेटवर्क इज एन अल्टरनेटिव टू BRI that was leveled to create a global network via lending-based financing to build roads, bridges, ports, airports and power plants. फर्दर इसी BDN में या ब्लू डॉट नेटवर्क में यूएस ने ये डिसाइड किया था कि वो चाइना का जो BRI है उसको compete करने के लिए इन एरियाज पर काम करेगी, जिसमें जैसे हमारे पास रोड्स बनाना, ब्रिजेस एंड सो फोर्थ। तो ये हमारे पास बेसिक्स है B3W से रिलेटेड। ठीक, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं BRI हो या B3W हो, इन दोनों में एक जो सिमिलरिटी वो ये है कि ये दोनों लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इन दोनों का पर्पस क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है या जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको ब्रिज करना। ठीक, ताकि उन मार्केट्स को जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज की जो मार्केट्स है उनको अप्रोच करना और उनको एक्सप्लॉइट करना। ठीक, ये दोनों का रेजन डेट रहा है यहाँ तक। ठीक, ये अलग बात है कि बिल्कुल ये है कि दोनों जो हमारे पास इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इनका जो लीड करने वाले कंट्रीज हैं उनको उनके अपने इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर चाइना की बात करें, यस चाइना का एक गोल ये भी है BRI के थ्रू कि वो अपना एरिया या उसको हम कहेंगे वो अपना इकोनॉमिक क्लाउड और पॉलिटिकल जो उसका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाए। ठीक, और दुनिया में हमारा एक ऐसा ऑर्डर लेके आए जो कि मल्टीलैटरल नेचर हो, मल्टीलैटरल इन नेचर हो, या जिसको हम कहते हैं मल्टीपोलर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर चाइना लेके आ रहा है।